Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. Today we are going to learn Science of Grade 5. Chapter number 1, Classification of Living Organism. What is classification? Classification is the division of living organism on the basis of their characteristics, their similarities and differences. Living organisms की division grouping कर देना on the basis of characteristics, like how they are similar and how they are different from each other, is called classification of living organism. Now the question arises, why the classification have been done? Classification क्यों की गई? Classification, as we know कि number of living organism on the earth are more than 8.7 million. So to make the study easier, they are classified by the scientist. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया ग्रुप्स में ताकि उनकी स्टडी इजीली हो सके. Okay, so in today's lesson we are going to study about the five kingdom system. Firstly, you must know about that the classification started with the two kingdom system. Kingdom mean group. Kingdom are the group system. Okay, so kingdom टू किंगडम सिस्टम से स्टार्ट हुई क्लासिफिकेशन में, लेकिन क्लासिफिकेशन को फर्दर क्यों किया गया फाइव किंगडम सिस्टम में? इसलिए किया गया कि टू किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स डिवाइड जो थे वो फिट नहीं हो रहे थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर वैरायटी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स. They have the variety of characteristics, and on the basis of these characteristics they are further divided into five kingdom systems. Okay, the new terminology here is taxonomy. Taxonomy साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करके उनके नेम्स और इनको डिस्क्राइब करते हैं. उनको नेम क्लासीफाई ग्रुप्स को क्लासीफाई करके उनको नेम्स दिए जाते हैं एंड देन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है. Here the activity is given. एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि देयर आर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक मैंगो, पैरट, डियर, मशरूम्स, कैट, पफ बॉल्स, hen एंड रोज. ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, but they differ in the characteristics. We have to write similar in the same name in the same box and give them the group name, group tag. So अगर मैंगो और रोज का देखा जाए, they have the similar characteristics and they are in the group plant. Parrot and hen in the same group and they are birds. Deer and cat are animals and mushroom and puffballs are fungi. Carlos Linnaeus is the father of टैक्सोनॉमी. फादर क्यों कहा जाता है? कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये टू किंगडम में डिवीजन थी, दैट इज डन बाय कार्लस लिनस. Next is five kingdom classification system. So in five kingdom classification system, who introduced the five kingdom classification system? Robert Whittaker classifies organisms into five kingdoms. That is called five kingdom classification system. In five kingdom classification system, living organisms are divided into kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. In kingdom Monera, they are unicellular, definite nucleus and autotroph or heterotroph, saprotroph or parasitic in nature. Example are bacteria. So move toward the reading of page number 4 about the kingdom Monera. There are almost 10,000 species of kingdom Monera and most of them are bacteria. बहुत सारे जो Monera kingdom में पाई जाने वाली species हैं, they are bacteria और bacteria plays both role. They are good
एंड बैड फॉर ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। कुछ के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं इन्वायरमेंट और ह्यूमंस पे, और कुछ जो हैं वो गुड वे में भी ह्यूमन और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं। इसी तरह से कुछ बहुत सारी ऐसी टाइप्स भी, इंपॉर्टेंट टाइप्स भी हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑर्गेनिक मैटर्स की ब्रेकडाउन में हेल्प आउट करते हैं। Okay, move to the next page, that is Kingdom Protista. Almost 60,000 to 2 lakh species are there of Kingdom Protista, and दे ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये डिजीजेस कॉज भी करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, और ये डीकम्पोजर्स का काम भी करते हैं कुछ, और प्रोटेस्टा जो हैं वो एज ए डीकम्पोजर वर्क करते हैं, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को जो कुछ और किंगडम प्रोटेस्टा की स्पीशीज जो हैं वो एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर भी वर्क करती हैं, एज दे आर ऑटोट्रॉफ ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है? ऑलमोस्ट 1,44,000 स्पीशीज आर देयर। ये भी एक वाइटल रोल प्ले करती हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं, फर्टिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि डिजीज़ कॉज करती हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, और हमारे फूड को भी स्पॉइल कर देती हैं। नेक्स्ट आर किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे ऑलमोस्ट 3 लाख स्पीशीज आर देयर, और ये स्पीशीज जो हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करती हैं एज दे आर प्रोड्यूसर, दे वर्क एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। और इसके अलावा जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, एज यू नो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी इनटेक करती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं, दैट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनमें वो हमें फूड भी प्रोवाइड कर रही हैं, शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और बिल्डिंग मटेरियल भी। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम प्लांटेड किंगडम प्लांटे से किए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अगर एग्जांपल देखी जाए तो दे आर फर्न्स, हर्ब्स एंड ट्रीज। नेक्स्ट इज किंगडम एनिमेलिया। चिल्ड्रन, डू यू नो कि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ किंगडम एनिमेलिया, एंड almost 1 million of species are there of kingdom एनिमेलिया। मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया जो है वो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये सोर्सेज हैं फूड का फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी हेल्प आउट करते हैं, एंड ह्यूमन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ओके, नाउ मूव टू द पेज 6, देयर इज एक्टिविटी। सो इन द एक्टिविटी व्हाट इज द क्वेश्चन? अ न्यू स्पीशी हैव बीन डिस्कवर्ड, एक नई स्पीशी डिस्कवर हुई, हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस जो है वो ट्रू है, इट इज मेड अप ऑफ वन सेल। इफ यू got the point that it contain the nucleus and have one cell, एक सेल इसमें पाया जा रहा है, और ये ग्रीन है एंड फूड भी प्रिपेयर कर रही है। नाउ यू हैव टू गेस which kingdom it might belong to. Now come to the flow chart that the new species क्या है? that have a proper nucleus, so first one gonna cancel, और second one को हम follow करते हैं। again next information is it is made up of one cell से बनी हुई है, तो ये यूनिसेलुलर है, और कैन मेक फूड, तो ये हमारे पास जो इसका ट्रू आंसर होगा वो क्या होगा? एलजी होगा। ओके, Now what is the importance of classification? Importance क्या है क्लासिफिकेशन की? क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई करती है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसके अलावा जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको इजीली एक्सप्लोर करना इजी हो जाता है। इसके अलावा हम लोग क्लासिफिकेशन की हेल्प से हाईलाइट कर सकते हैं जो सिमिलरिटीज़ हैं कि कैसे दो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से सेम और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और इसके अलावा एवोल्यूशन को हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं। एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन होती है एवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म का सिंपलर फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होना है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायोलॉजिकल साइंसेस में।
Okay, students, open your workbook, page number 2 and 3. Workbook, page number 2 and 3 पे जो 3 questions given हैं, they all are about the concept that we discussed in the lecture. So try to solve it. जिन students ने इसको solve कर लिया है, they have to learn it. We will share the PDF as well. This is all about it today. Take care of yourself. Allah Hafiz.